Hello students, welcome to this channel Science by Ashish Kumar. In the previous video, we studied class 10 Science chapter 1 Chemical Reactions and Equations, and in the part 2, and I hope it will be the last one, it is about the types of chemical reactions. In the previous video, we studied what are the chemical reactions, what are the chemical equations, how we write chemical equations, how we balance chemical equations, and in this chapter and in this video we will now focus on the types of chemical reactions. Students, let's see the types of chemical reactions, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and finally oxidation reduction reaction. So students, now let's see the first one, that is combination reaction, also known as संयोजन अभिक्रिया. For Hindi students, it is called संयोजन अभिक्रियाएं, that is combination reaction. The reaction in which two or more reactants are reacted to form a single product, that is known as combination reaction. If, let's see the example, calcium oxide, S is for solid, CaO, that is calcium oxide, also known as quicklime, the common name, plus H2O, water, L for liquid, gives calcium hydroxide, that is also known as slaked lime. This is the common name, slaked lime. Lime means चूना, एंड चूने से जुड़े हुए कई सारे पदार्थ आपके रसायन विज्ञान में आपको पढ़ने को मिलेंगे. बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पत्थर, and all will become also in this video, luckily. So we'll see quicklime, that is calcium oxide known, and calcium hydroxide is also known as slaked lime. AQ is here for aqueous. Students, if we use AQ in bracket in any chemical reaction beside any compound, then it means that calcium hydroxide solution in water. We studied in previous classes that in a solution there is a solute and there is a solvent. एक विलायक होता है, एक विलेय होता है, आपने पढ़ा है विलयन में. तो सॉल्यूशन में यहाँ पे वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, AQ लिखा होने का मतलब ये होता है. पूरी डिटेल बात नहीं लिखी जाती है, बिकॉज हमने पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल इक्वेशंस आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस को संक्षेप में लिखने का तरीका है केमिकल इक्वेशंस. तो हर चीज को शॉर्ट में करने की कोशिश की जाती है. तो AQ लिख देने से मान लिया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है इन वाटर, यानी एक बीकर में वाटर लिया गया है, उस वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोला गया है, और दैट सोल्यूशन इज नोन एज CaO का होल ट्वाइस AQ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस या AQ. So AQ is for aqueous, that is calcium hydroxide solution, plus heat is an important aspect, that is heat is released in this kind of reactions. So in the combination reaction, if we have to write down this, so we can write that in such reactions two or more reactants form a single product. Those reactions are called combination reaction. And if the heat is released also in this kind of reaction, then another category of reactions, another basis, that is basis of the heat released or absorbed, on the basis of releasing or absorbing of heat, we can categorize the chemical reactions in two forms. Like this one is एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वे अभिक्रियाएं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शंस जहां पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक जो रिएक्शन करने वाले हो, दो या दो से अधिक हो, वो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनाने की.
केवल एक ही उत्पाद बना है COH का होल ट्वाइस प्लस हीट, यानी ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ये एक उदाहरण हो गया कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया का। और इसमें जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये एक उसका भी एग्जाम्पल हो गया। ये एक अदर, जैसे ये 5 तरह की अभिक्रियाएं तो होती ही हैं केमिकल रिएक्शंस, लेकिन अगर हम ऊष्मा के अवशोषण होने की बात या उसके रिलीज होने की बात, निकलने की बात अगर हम करें, तो उस आधार पर भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस 2 तरह की हो सकती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी, निकलेगी नहीं, बल्कि हीट देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को करने के लिए। दोज रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को कराने के लिए। अभी आगे उसका एग्जांपल आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज वियोजन, वियोजन अभिक्रियाएं, known as in English decomposition reactions. And in such reactions a single reactant gives 2 or more products. Single reactant is there, after heating it gives calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium carbon here is S for solid, that is the solid state, ये ठोस है। कार्बन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हिंदी में चूने का पत्थर भी कहते हैं, लाइमस्टोन। एंड जब इसको हीट देंगे, हीट यहाँ लिखा हुआ है, यानी इसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जी यहाँ लिखा है, ये गैस के लिए है। तो हमने केमिकल रिएक्शंस लिखते के नियम पिछले वीडियो में देखे थे। तो ये कहा था कि जो भौतिक अवस्था होती है किसी पदार्थ की, फिजिकल स्टेट होती है, उसको भी हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे G गैस के लिए, ये S सॉलिड के लिए, यहाँ भी S सॉलिड के लिए है, हीट है। हीट के लिए हम ये भी लगा सकते हैं, अगर ये कहीं पे आपने ट्रायंगल बना दिया, इट इज द सिंबल ऑफ हीट। तो हीट किया जा रहा है। एंड अगर गर्म करने पर कोई एक सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक पदार्थ गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, प्रोडक्ट देता है, तो दैट इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रियाएं, कई नाम हैं इनके हिंदी में भी। तो और अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि अगर किसी रिएक्शन में, यहाँ ऊपर वाले में हमने देखा था कि हीट निकल रही थी, रिलीज हो रही थी, यहाँ देखिए हीट वाज रिलीज्ड in this reaction, and that is known as exothermic reaction. And in which reactions, in which the reactions in which the heat is absorbed for the reaction, that is the example here CaCO3, these kind of reactions are known as एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, अगर हिंदी में इनको कहें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एंड ऊपर वाली एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। हिंदी के बच्चे ध्यान देंगे, उनके बीच बीच में मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं जो आपको हिंदी में पढ़ने में, हिंदी की पुस्तकें अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको आसानी होगी। एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। जैसा कि नाम से ही विदित है कि an element will remove or replace another element from any solution. So the reactions in which an element remove or replace another element from any solution known as the displacement reaction. For example, iron, in this reaction Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. In this reaction iron replace copper. See, iron replace copper and put himself with sulfate and make iron sulfate, ferrous sulfate, iron sulfate, and copper is removed from copper sulfate solution and copper is now single in the products. There is copper, it is now single
and in the reactants copper was with sulfate. So copper was removed by the iron element and the iron makes ferrous sulfate here. So that is displacement reaction, जहाँ पे एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, किसी सॉल्यूशन के किसी दूसरे तत्व को वहां से हटाकर अपना वहां पर सेट हो जाता है, फिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आयरन ने कॉपर को हटा के खुद को सेट कर लिया और FeSO4 बनाया। ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रियाएं। अगर हम आगे बढ़े, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट डबल हो रहा है, 2 बार हो रहा है। यहाँ पे केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, बस सिंगल एक एलिमेंट दूसरे को हटा रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी द्विविस्थापन, हिंदी में द्विविस्थापन, द्वि मतलब 2, जिसमें कि द रिएक्शंस इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस known as double displacement reaction. The reactions in which the exchange of ions takes place amongst the reactants. Reactants अभिकारकों के बीच में exchange of ions होता है, इनका आयन उनके पास जाएगा, दूसरे reactant का पहले के पास आएगा, तो 2 बार displacement हो रहा है। See the example, sodium sulfate plus barium chloride gives barium sulfate plus sodium chloride. You see, it is very clear that sodium removed barium and make NaCl, sodium chloride, and barium removed sodium from here and makes barium sulfate. So both of the reactants, sodium sulfate and barium chloride, exchange their ions with each other and makes the products, that is barium sulfate and sodium chloride. So this is the example of double displacement reaction, जिसमें दोनों ही रिएक्टेंट, दोनों ही विकारक अपने अपने आयंस का, यानी सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है, और बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन है, क्लोराइड आयन है, दोनों ही रिएक्टेंट्स अपने अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें 2 तरह की अभिक्रियाएं एक साथ रखी गई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए इनको अगर दोनों एक साथ हो रही हैं तो इनको एक और नाम दिया गया है, रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों का मिला करके रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया गया है और बना दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट द ऑक्सीडेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनी कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन उससे मिलती है, दैट इज ऑक्सीडेशन जनरली वी से। बट हियर वी मेक इट क्लियर दैट if there is a gain of oxygen to any element, किसी भी एलिमेंट को अगर ऑक्सीजन मिलता है, अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है, तो we can say that element is oxidized. See here, CuO plus H2O gives Cu plus H2O. Here hydrogen in the reactants has gained the oxygen and makes H2O. यहाँ पे हाइड्रोजन ने देखिए ऑक्सीजन ग्रहण किया यहाँ से और H2O बना दिया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन यहाँ से गेन कर लिया एंड दैट मेक्स H2O वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। और रिडक्शन की बात अगर करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। Simply, there are also many other concepts of oxidation reduction, but here now in this chapter, according to syllabus, we are not going to discuss about those concepts, but only one concept of oxidation and reaction we will discuss here. That is, the gain of oxygen is oxidation and the removal of oxygen is reduction. और भी concepts हैं, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के और कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो कहीं किसी पर्टिकुलर किसी चैप्टर में आएगा तो उस डिटेल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में अभी वो नहीं पढ़ना है हमें। बट यहाँ पर अभी हमें इसे समझने के लिए
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, इसने ऑक्सीजन अपना खो दिया, लूज कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि Cu यहाँ पे देखिए यहाँ सिंगल हो गया प्रोडक्ट में, यहाँ सिंगल बचा है, इसके पास ऑक्सीजन अब नहीं है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का रिडक्शन हो गया है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया है, खो दिया है, और अब वो केवल कॉपर बचा, ऑक्सीजन चला गया, और ऑक्सीजन गेन किसने कर लिया? हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का रिडक्शन हो गया। सो वी कैन सी दैट बोथ काइंड्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल रिएक्शन। एक ही अभिक्रिया में दोनों साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहे हैं, एंड सो वी से दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन। इनको रिडॉक्स रिएक्शन का भी नाम दिया जा सकता है। हिंदी में उपचयन एंड अपचयन, ऑक्सीडेशन को उपचयन बोलते हैं और रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। तो उपचयन एंड अपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन, रिडक्शन, अपचयन, एंड दोनों रिएक्शंस हो रही हैं इसी में, तो इनको नाम दिया गया रिडॉक्स रिएक्शंस। सो these are the types of reactions here in chemical reactions chapter, and in the last we will study corrosion, that is संक्षारण। आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी हैं, कॉमन बात है, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने अक्सर देखा होगा जो लोहे के सामान हम लेते हैं, अक्सर उनमें जंग लग जाती है, भूरे रंग का एक उसके ऊपर जमने लगती है, ब्राउन कलर कोटिंग इज देयर ऑन एन ओल्ड आयरन, एंड दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड इसको अगर हम साइंस में जाएं तो साइंस में इसको कोरोजन बोलते हैं। बिकॉज क्या है कि जो हमारा एलिमेंट होता है, जैसे आयरन है, वो आसपास के मॉइस्चर से, यानी नमी से, वाटर से, ऑक्सीजन से, इससे सबसे, या एसिड से, इनसे सबसे जब उसका पाला पड़ता है, रिएक्शन होता है, तो वो कोरोड करने लगता है, यानी संक्षारित होने लगता है, और उसी प्रक्रिया को कहते हैं कोरोजन या संक्षारण, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो इस तरह के पदार्थ बनाता है जो उसके ऊपर एक फेरस ऑक्साइड के रूप में, आयरन ऑक्साइड के रूप में उस लोहे के ऊपर वो परत जमजी जाती है, जो उसको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ऊपर का लेयर उसका खराब होने लगता है, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है। अगर उसका कुछ इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लोहा बिल्कुल खराब भी हो सकता है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें कि एलिमेंट्स को नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही चांदी में आप ब्लैक कलर की, सिल्वर में आप ब्लैक कोटिंग देखेंगे, कॉपर में आप ग्रीन कोटिंग देखते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग और कोरोजन। अगर सिल्वर में, चांदी में आप कोरोजन देखेंगे, ब्लैक कलर का लेयर जमने लगता है, और तांबे में हरे रंग की एक लेयर जमने लगती है, दैट इज नोन एज कोरोजन। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है कि ऑयल एंड फैट, कोई तेल से बना हुआ पदार्थ है, कोई तेल है, कोई तेल से बना हुआ पदार्थ है, अगर आप उसे लंबे समय के लिए खुला रख देते हैं और वो ऑक्सीडाइज होने पाता है, ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे ऑयल एंड फैट से बने हुए पदार्थ या ऑयल एंड फैट एक अजीब तरह की स्मेल देने लगते हैं, गंध देने लगते हैं, तो वो कहलाता है, ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीडेशन, और उसके तरह जो गंध निकलती है उसको कहते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम। सो वी हैव टू कीप the oil and fat products within a airtight container। अगर हम एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं तो ऑक्सीजन का उसका कांटेक्ट होने का चांस कम हो जाता है, तो रैंसिडिटी के भी चांसेस कम हो जाते हैं। आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसमें कुछ हवा भरी रहती है, हम खोलते हैं, बच्चों आपने खाए होंगे चिप्स, तो इफ यू टेक अ पैकेट ऑफ चिप्स, यू सी देयर इज एयर इन दैट चिप्स बैग, एंड दैट इज नॉट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वहाँ से निकाल ली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें होगी, एयर उसमें होगी, हमारी जो नॉर्मल एयर है तो उसमें ऑक्सीजन होगा, और रैंसिडिटी होने लगेगी, वो चिप्स खराब हो जाएंगे, तो उसमें से सारी हवा निकाल लेते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन लाइक कोई गैसेस भर देते हैं,
जो ऑक्सीडेशन नहीं करेंगी, जो रेजिडिटी नहीं करेंगी, जिससे कि ज़्यादा समय तक चिप्स रखे भी रहते हैं 4-6 महीने साल भर तो ख़राब नहीं होते हैं पैकेट के अंदर. दिस रेजिडिटी इज द रीज़न बिहाइंड वी हैव टू फ्लश द नाइट्रोजन गैस into the chips bag to save. So now finally we have finished this chapter, chemical reactions and equations, and today we have studied the types of chemical reactions. हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े और हमने कोरोजन पढ़ा, हमने रस्टिंग पढ़ा, हमने रेंसिडिटी भी पढ़ ली और लास्ट में फाइनल में हम इस चैप्टर खत्म कर ले गए. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई आपके क्वेश्चंस हो, कोई आपके कन्फ्यूजन्स हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ and my method of teaching, please like and subscribe my channel, that is Science by Ashish Kumar Verma. Thanks.